Hi friends, very good morning and welcome to my channel. And it's just another wonderful Wednesday, awesome. It's around 8 o'clock because by the time I come here it's 7:35. Okay, the entire round. See, if I leave my house at 6:40, so it takes me almost 20 minutes. If I leave at 6, today I was calculating, I left my house at 6:44. So by the time I reached at Pond Park, it was exactly 7 o'clock. So now my what to say, speed has increased, my stamina has increased. So I was checking out, so it just takes me around 15 minutes, 15 to 16 minutes, which was to take me 20 minutes earlier. So if I do this regularly, then the speed becomes better and better, and I reach faster and faster. I hope you understand. Because till I was just calculating till the church gate, if I walk if I walks in my normal pace, this is my normal pace. I'm neither running, I'm neither walking. In my normal, जो भी मेरा normal routine है, normal phase है, उसमें मैंने ये किया है. So you can understand how it is. वीआई में पहली बार बफरिंग हो रहा था, पहले नहीं होता था. आई डोंट नो वेदर द सर्विस प्रोवाइडर इज़ डूइंग इट पर्पसली और वो बफरिंग हो रहा है. पहले मैंने कभी प्रीपेड में एक बार भी बफरिंग नहीं ये किया है. सो मुझे जल्द से जल्द इस चीज़ को कन्वर्ट करना है. पर्पसली दे जस्ट मेक मनी आउट ऑफ नथिंग. लिटरली इट इज़ जस्ट अपने आप को थोड़ा सा ग्रेट समझने के लिए वी नीड दीज सर्विसेज. दे मेक अस फील लिटिल पॉश एंड सोफिस्टिकेटेड. How is my look? How am I looking? It's the vibe which you put into your this. You know, this Seema Anand, this lady needs to be locked up and sent to Antarctica or Arctic Circle, because the amount of rubbish she's spreading in the name of teaching women about sex and sexual position, men and women. She's harming the society, she's harming the world, and she's harming the younger generation. Why I'm stressing this? Because she is a public enemy number one, and we have to understand these are the agents of the opposite party who spread so much of misinformation. They sound very polished because of their English and their privileged background and their elitist living sense of living. You should see the amount of crap she talks. You know what I do? I don't actually go and see the minute she used to come on this multiple podcast, मैंने समझ लिया कि ये अभी फुल स्विंग में जा रहे हैं. सी ऐसे लोगों को चैन नहीं होता है, क्योंकि इनको एक टारगेट कंप्लीट करना होता है. एंड दे हैव टू दे आर ये ना हमेशा रोना रोती है. आई एम एंग्शियस, आई एम गोइंग थ्रू दिस, आई एम सिटिंग विद माई व्हाट थेरेपिस्ट. व्हाई डू यू नीड अ थेरेपिस्ट? Because you know what you're doing. You're spreading so much of misinformation. You're normalizing sexual fetishes, which is a crime by itself. किसी को किंकी फेटिशेस होते हैं, वो कितने परसेंट के होंगे? पूरे बिलियन, 1%. Then you're telling women, oh, it's okay if he is not doing with you, so what? Try to understand, try to talk out with you. अगर तुम्हारा हस्बैंड या बॉयफ्रेंड के पास ऐसे किंकी फेटिशेस होते हैं, मीन्स इट्स मेंटल हेल्थ इलनेस. इट इज़ ऑन द सर्विस लेवल. उसकी बॉडी अच्छी खासी रहेगी, खूबसूरत दिखता होगा, पैसे वाली पार्टी होगी, तो ये बोर्ड हो जाता है लाइफ में. सो दे वांट टू ट्राई डिफरेंट किंग्स. सो दिस लेडी इज़ नॉर्मलाइजिंग इट. Sometimes men purposely leave certain messages and phone calls in their phone so that they are caught by their wives and girlfriends. They do it on purpose. इसके दो कारण होते हैं. वो they test the woman की वो कितनी बर्दाश्त कर सकती है, उसकी चीटिंग, उसकी किंग्स, उसके फेटिशंस कितना बर्दाश्त कर सकती है. ये सब बर्दाश्त करने के बावजूद भी क्या वो मेरे साथ में है?
Men have started thinking like they are gods, and women are thinking they are goddesses. Glucose goddess. She's a French biochemist, and she's thinking no end of herself. She thinks she's a god because she has all the knowledge. नो वी डोंट हैव नॉलेज. एक सिंपल खाने पीने की चीज़ के ऊपर भी इतनी चर्चा करना कुछ मीनिंग नहीं बनता है. 3 meals a day. और हमारी इंडियन सोसाइटी वो है कि शाम का चाय नाश्ता पीते हैं हम लोग, 2 बार चाय पीते हैं. ये भी होता है, डिपेंडिंग पूरे हाउस होल्ड में होता है. सुबह एक बार होता है नाश्ता, प्री ब्रेकफास्ट, पोस्ट ब्रेकफास्ट, फिर ब्रेकफास्ट के टाइम पे एक चाय पीना, फिर 10 बजे 10:30 बजे या चाय या कॉफ़ी पीना. ये चलन है. ये ऐसी सोसाइटी. लोग आते रहते हैं, हम लोगों के घर पे जाते रहते हैं, तो खाने पीने पे ही हम लोग का ध्यान लगा रहता है. तो उसके ऊपर हम लोग इतना प्राउड बन रहे हैं. यू नो, आई कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद माई सेल्फ इज़ बिकॉज आई हैव द करेज एंड आई टेक द रिस्क. कि व्हेन आई से, जैसे मैंने एक चीज़ है कि जब मैं बिस्किट्स खाती थी मैदा, मैं ये पार्ले जी की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन दीज चॉकलेटी वो ऐसे होते हैं ना, मेल्किस्ट काइंड, थोड़ा अप लेवल के बिस्किट्स. और मैंने जब ओ गॉड, दिस लेडी इज़ लुकिंग बेटर नाउ. बिफोर ना ये चोटी पहन के आती थी ये मेरी बिल्डिंग की फीमेल. अभी देखो जैसे अपग्रेड हो गया सोसाइटी. नाउ शी इज़ ऑल्सो लाइक डूइंग ऑल दीज थिंग्स. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट एज योर थिंग इज़ चेंजिंग, यू आर ऑल्सो लाइक अपग्रेडिंग, राइट? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. My skin is looking awesome. Okay, so that's what I'm trying to say is that हम लोग gods, like what is running in people's mind these days? 24 hours they just want to have so much of information. There's information overload which is happening. ये जो मैं पार्क बेंच पे बैठी थी ना, now there it is occupied by 2 people. Well, if I can show you. See, this is the bench which I said, which is next to this place. Now there are 2 guys sitting there. So I went and sat on that bench and I said, there is this lady that she was watching सावधान इंडिया in the morning. मैंने बोला क्या देख रही हो? सावधान इंडिया. क्योंकि मैंने बोला अच्छा है, सुबह सुबह ये क्राइम के स्टोरी सुनो. शी सिंह तुम नहीं देखती हो? मैंने बोला मैं सुबह सुबह ये नरकुंड वाली चीज़ें नहीं देखती हूँ, मुझे मेरे दिन को शुभ बनाना है. मैंने बोला इसलिए तो ये इंडियंस की ज़िंदगी झंड बन गई है, बिकॉज ऑफ दिस इंडियन टेलीविज़न सीरियल्स. वहम, दहशत, डर पैदा करने वाली चीज़ें. सॉरी, आई जस्ट ईट दिस. द लास्ट मील आई हैड वॉज एट अराउंड, कभी खाया था मैंने खाकरा? 4 बजे कल. 4:30 बजे, 5 बजे खाया था मैंने. I had a guava and I had a this. See, ये जो मोर होता है ना, this is how it looks. जब ये राइप होता तो उसका टेस्ट चेंज होता है. इसको बोलते हैं ग्लाइकेशन. Now you understand? इलेक्ट्रिक पोल जंपर इज कम कवरिंग हिम अप फुल्ली. वो जो हुडी पहनते हैं ना चोर लोग, वैसे. Today I'll color my hair. Today I'm feeling better. Body is a wonderful, it has its own way of healing. It has its own way of taking out toxins from your body. अब सिंपल फूड सबको चाहिए नहीं, राइट ना? नेचुरोपैथ तो दे आर अगेंस्ट द पिकल्स ऑल्सो. वो छोटा सा पप्पी था जो अंदर आ गया था. It might belong to someone.
Very egoistic person. No, sometimes I forget English words. Reckless is the word. Reckless. Thank you, Ina. वो क्या है ना that I've kept my this very simple my video and I'm speaking ज़्यादातर in हिंदी. जब ये लोग शो ऑफ करते हैं ना ज्ञान का, समटाइम्स इवन आई वॉज फीलिंग वेरी प्राउड दैट मुझे इंटरनल इन्फॉर्मेशन, यू लूज़ योर माइंड, यू विल लूज़ योर माइंड विथ सो मच ऑफ इन्फॉर्मेशन. तुम पागल हो जाओगे. इसलिए मैंने वो स्टॉप किया, वो वाला डार्क रिसर्च करना कि क्या कैसे बनता है, बिकॉज आई केम टू नो ये कैसे बनता है. तो उसके ऊपर और ज़्यादा ये जो बोलते हैं ना यू हैव टू मास्टर योर आर्ट, एक टाइम पे लर्निंग का एक टाइम पे बंद करना चाहिए. इट्स ओके. देयर वाज दिस कार ब्लू स्मार्ट करके, आई डोंट नो वेदर इट्स उबर का होगा. इट वाज इलेक्ट्रिक व्हीकल. मैंने उस बंदे को पूछा, ड्राइवर वेल ड्रेस था. मैंने उसको पूछा मतलब वेल ड्रेस मतलब जैकेट यूनिफॉर्म जैसे कुछ तो पहना था. भाव देखो इसके. मैंने बोला ईवी चलाने में क्या फ़र्क है पेट्रोल और ये. हाँ फ़र्क तो है. ही वाज ट्राइंग टू एक्ट वेरी इलीटिस्ट. हाँ, ही वाज एक्टिंग वेरी प्राउड अबाउट हिमसेल्फ दैट ही इज़ ड्राइविंग एन ईवी. मैंने बोला कुछ तो फ़र्क होगा, तो बताओ क्या फ़र्क है. I was also like a reporter. I asked him generally, सब तो फ़र्क तो होगा ना. All he could say, नहीं मैडम अच्छा लगता है क्योंकि इसमें ब्रेक नहीं होता है. नहीं सॉरी, इसमें एक्सीलरेटर नहीं होता है. He could have said that. अभी then he's saying हाँ ये उसमें दो रहता है. See how he spoke to me. उसमें दो रहता है, इसमें एक है. मतलब क्या, सिर्फ ब्रेक है, एक्सीलरेटर नहीं है, ये कहने का मतलब है. उसमें दो रहता है, इसमें एक ही है. इट साउंडेड लाइक सम वल्गर बी ग्रेड मूवी का डायलॉग. दो रहता है, इसमें सिर्फ एक ही है. फनी पार्ट ऑफ इट. The person who tells me on my face that if you need any help, you can always contact me, doesn't even say a good morning. Isn't it strange? You can see this big building which I'll show you. पीछे का building which you can see, that is Ashok. That building itself is called Ashok Nagar, I think so. But the whole area is called Ashok Nagar. तो इसके अंदर स्विमिंग पूल, गार्डन, अच्छा खासा गार्डन है. It's quite big. Quite a big premises. Next time I have to take this lane and go keep walking till the end to see what's happening. This lady seems she's in her 40s, huh? When she's pregnant or something. I don't know. The one who was sitting at the bench with me. और ये सावधान इंडिया देख रही है. I don't know, she looks pregnant. But fibroid के प्रॉब्लम से भी पेड़ बढ़ता है ना. She's in her 40s, mid 40s. 40s, late 40s. That puppy was so cute, no? What else? Look at my skin. Shall I go and sit? Okay, let me. I don't know whether there's somebody in the kitchen. This is the kitchen. You can see. This bench faces the entrance.
मैं आज में मैं भूल गई. I could have bought some things for sparrows and all that. Huh? I don't see other oldies. They don't come, I guess. It's because it's cold or I don't know whatever the reason is. Have you seen birds putting on weight? Animals putting on weight unless and until you keep them as a pet or they are in the zoo. Natural diet. You should follow natural diet. तुम खाने के लिए जंक फूड भी खा सकते हो. आई वेंट एंड हैड 3 वड़ा पाव एंड 1 समोसा. वाई? बिकॉज उस दिन मैंने कुछ नहीं खाया था पूरे दिन में. आई जस्ट हैड फ्रूट्स. आई थिंक आई मस्ट हैव हैड 1 कैरेट, 1 काकड़ी. So I was, by the time it was evening, I was so hungry. And not only that, I went for a walk. I completed 3 kilometers that day. Two kilometers. So you have to understand that. Rise and Shine was my last WhatsApp status. उसके बाद मैंने कोई स्टेटस नहीं डाला. उसके बाद there should be no status. Why is she normalizing, desensitizing legal? And then when you good morning, very good morning. Desensitizing, normalizing, legalizing. Good morning निकलता ही नहीं मुँह से. And this man was supposed to say कि if you need genuine help you can approach me. Like seriously. He was acting too smart. See, today he's covering himself and coming. You know, I was analyzing my life. When we give access to people, like suppose my relatives, my neighbors, my community people, अगर I give them access, ये मेरे सर पे बैठ जाएंगे and they think they are too entitled to say whatever they want to. So in the past I had that, people calling me up, saying whatever they felt like, और मेरे सर पे बैठ रहे हैं, saying random things. तो जब तुम अपनी एक्सेस को लिमिट करके अपने आप को अपग्रेड करते हो, अप लेवल करते हो, आफ्टर समटाइम्स यू विल नॉट बी बॉदर्ड. यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट एनीवन एंड एनीथिंग. I'll tell you something. You know that I told you ना मेरी फर्स्ट फ्लोर की वही पागल जैसी लेडी है, मेरी नेबर. She's got cancer. Okay. I remember telling her, Auntie, your body has got a lot of heat issues because you're eating a lot of things and you're taking too many unnecessary medicines. Then you should be wearing cotton kurtas and leggings, not this sari because this is so much of layers. She'll start getting rashes. No, I am like this only. I will never wear a sari. No, I will never wear a kurta and a legging. मेरी बेटी ने लाके दिया है लेकिन मैं नहीं पहनूंगी, मैं तो साड़ी ही पहनूंगी. So she was always this stubborn bitch. कल मुझे लगता है अभी उसका कीमोथेरेपी कुछ तो हो रहा है. कल मैंने देखा उसको, वो चिल्ला के बातें करती है. किसी से भी बातें करती है ना, ऐसा लगता है वो झगड़ा कर रही है. But she was talking to another psycho senior citizen, another who thinks she's forever young. Okay, she's on rentals. अब this particular lady also हाँ rentals में है ये.
ये भी मेरी कम्युनिटी की बंदी है, मतलब इन द सेंस या शी इज़ माई मदर्स फ्रेंड, वॉज माई मदर्स फ्रेंड। शी इज़ कम, अभी इस महीने से आई है रेंटल पे, या लास्ट मंथ से या ये महीने से, लास्ट मंथ से। इतना घमंड, मैं तो देख के अनदेखा करती हूँ। एंड शी इज़ ऑन ग्राउंड फ्लोर, सो आई सी हर फेस एवरी सिंगल डे। आई जस्ट डोंट, आई ऑल्सो मुँह बनाती रहती है, मैंने भी उसको मुँह बनाया। मैंने बोला होगा तो, होगी तो कुछ तो ग्रेट। मेरे घर पे भी आई थी, वो बहुत मिसबिहेव कर रही थी। सो माई मॉम हर सेल्फ, ऐसा तेरा मुंह नहीं खुलता है व्हेन शी इज़ थ्रोइंग एटीट्यूड टू टेल हर समथिंग ऑन हर फेस, मैं ही बुरी बन जाऊँ। हम लोग ने उसके लिए चाय बनाई, देन शी इज़ टेलिंग नहीं मैं चाय नहीं कॉफ़ी पीती हूँ। देन शी केम इन साइड द किचन, एटलीस्ट when I told her that my mom told her that I'll make tea, she shut her mouth. जब चाय बन गई शी इज़ लाइक मैं नहीं पीऊँगी, मैं कॉफ़ी ही पीती हूँ। एंड माई मदर वॉज फ्यूमिंग। ऐसे तभी मुंह नहीं खोल सकती थी क्या उसके सामने? दैट वॉज 2 years ago समथिंग। मैंने, एंड देन शी इज़ टेलिंग मी कैन यू अपलोड मी दिस कुछ रबिश गेम ऑन। आई सेड आई विल नॉट डू दैट, इट्स रिस्की। एंड आई सेड यू सीनियर सिटीजन्स आर डम, कुछ ऊपर नीचे हो गया तो यू गेट इट डन फ्रॉम समवन एल्स, आई विल नॉट डू इट। गेम खेल रही है पागल, इंस्टेड ऑफ टेकिंग केयर ऑफ अ ग्रैंड चिल्ड्रन। एंड वो काम को शौक करना है तो यहाँ पे आ जाता है उसका आस। स्टूपिड बिच। और 24 घंटे बस बाहर का खाना खाना है, पिक्चर देखना है, यही करना है इस लेडी को। मतलब तेरे पति के या तुम्हारे बच्चों के हार्डवर्क के पैसे तुम्हें ऐसे ही उड़ाने हैं। फिर बीमार पड़ते रहते हैं ये। फिर इसने एक फुकटी फ्रेंड भी रखी थी जो एक पैसा नहीं खर्च करती थी और यही मैंने बोला तभी तुम्हारा मुंह नहीं खुला। इनको सिर्फ पिक्चर देखना है बस, बाहर शॉपिंग करनी है, बाहर यहाँ वहाँ टहलना है, बस यही है। पागल लेडीज। किसी की मदद करो, इतने सारे पैसे हैं तो किसी बच्चों की फीस भरो। किसी की शादी हो रही है वहाँ पे वो लड़की को एटलीस्ट साड़ी तो खरीद के दे दो। इतने पैसे बर्बाद कर रहे मेंटल कहीं के। ये सब नहीं करेंगे हरामी लोग, वेस्ट करेंगे पैसा। That other female died very horribly. Her fukti friend. She was also my mother's friend, but she used to try to be my friend. अच्छा, now this lady I was talking about, मेरी neighbor, बहुत घमंड। अभी भी उसको डॉक्टर ने भी यही बोला था that you should wear cotton कुर्ताज and अब वो शलवार कमीज पहनना शुरू कर दे। इस भैंचोद औरत को अपना ही करना है ना। Then yesterday I saw her talking with this another bhanchod lady, both are bhanchod only, and they were talking very loudly in Konkani community के, है ना, ज़ोर ज़ोर से बातें करें। मैंने बोला कोई झगड़ा करे है, नीचे देखा तो मैंने बोला दोनों पनवतियाँ एक साथ खड़ी है, मतलब दुनिया भर का गॉसिप, यहाँ का वहाँ इन्फॉर्मेशन, उसमें से मेरा एक टॉपिक निकलेगा डेफिनेटली। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ दैट शी स्टेज जस्ट बिलो माई बेड, मतलब वो उसी लाइन में रहती है ये पगली लेडी। तो फर्स्ट फ्लोर वाली चिल्ला के उसके साथ बातें, बिकॉज शी हैज़ टू डू एन अनाउंसमेंट। मुझे लगता है अस्पताल में गई थी और वापस आ रही थी, रिक्शा से उतरी और इसके साथ भौंकने लगी। इट वॉज अराउंड 5:30, क्योंकि ये चर्च कंपाउंड में जाएगी दूसरी साइको लेडी। अभी इसके पास कोई फ्रेंड्स नहीं है। दूसरे सीनियर सिटीजन रोज़ के रोज़ बाहर का खाना और रोज़ के रोज़ पिक्चर देखना तो नहीं करेंगे ना। तो ये क्या करती है, रेंगती रहती है चर्च कंपाउंड में। 5:30 बजे ही निकलती है, वहाँ पे बैठे रह के गॉसिप करना, चिट चैट करना। तो 8 साढ़े 8 वहीं पे बढ़ जाते ना। सोहर इन कुर्ता एंड लेगिंग्स। उसका बेटा भी सोच रहा होगा कि उसका पति और बेटा ये मरती क्यों नहीं है, क्योंकि ये ऐसी औरत है ना हरामी, रोज़ के रोज़ चीखना चिल्लाना। लाइक कैंसर हो गया, यू लॉस्ट वन ऑफ योर ब्रेस्ट, तेरा पूरा बॉडी इतना, आए दिन बीमार पड़ती रहती है, आए दिन अस्पताल में रहती है, लेकिन
चीखना चिल्लाना कम नहीं रहता है, तो वो भी सोच रहे होंगे बाकी के लोग मर जाते हैं, यही अभी रेंग रही है। ये ज़िद्दी औरत है ना, मतलब अगर मौत भी आ रही है ना, शील बी लाइक गॉड कैन यू एक्सटेंड माई टाइम, आई नीड टू हैंग अराउंड। मतलब लालच है इस औरत को। मैंने बोला इस तरह से कौन जीता है? when you yourself is not peaceful, you are not making people around you peaceful, फिर फ़ायदा क्या है तुम्हारी इस ज़िंदगी का? और शीबिल की बोस्टिंग देखो, मेरे कितने मेडिसिन है, मैं कितना मेडिसिन खाती हूँ। So upgrade and up level yourself. That's what I want to tell my viewers. Ina, how are you? I'm sure you're getting better. देखो भाई, अगर तुम एंग्जाइटी लोगे, स्ट्रेस लोगे, दुनिया भर के लोगों के बारे में सोचोगे, लाइफ इज़ नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। मैं भी ऐसे ही सोचती थी। आई यूज्ड टू बी सो प्रिटी इल। मैं इतनी बीमार रहती थी। देन आई रियलाइज कि मैं बैंडी क्यों इतनी बीमार पड़ूँ। मेरी कोई यहाँ पे वेल विशर तो है नहीं, पर every path that I'm walking, people are here to only push you down the drain. तो मैं कैरी नहीं करती हूँ अभी। See my skin. I enjoy my fasting. I enjoy my food also. अभी मैं क्या करती हूँ, मैंने नवंबर दिसंबर में से बाहर का खाना शुरू कर दिया है, तो आई एम बैलेंसिंग आउट माई बॉडी, क्योंकि मेरी बॉडी को बिल्कुल ही जमता नहीं है। सो वाई एम आई कीपिंग माई सेल्फ लिटिल बैलेंस, क्योंकि कल को मुझे कौन सी लाइफ स्टाइल है, कहीं ट्रैवल करना है, कहीं जाना है, वेर आई कांट कुक माई ओन मील्स। सो हाउ डू आई एडजस्ट माई सेल्फ? अब तक मैं आई वॉज लिविंग इन अ बबल, बट टुमारो आई डोंट नो, मे बी देयर विल बी मूवमेंट इन माई लाइफ, मे बी आई डोंट नो। सो हाउ विल आई एडजस्ट? वॉट विल आई ईट? सो आई ऑलवेज कीप माई सेल्फ प्रिपेयर्ड कि मुझे क्या खाना है, किस तरह से खाना है, किस तरह से एडजस्ट करना है। You know, it becomes a problem when you go to different places and you don't get to be honest, I'll tell you, when I had gone to Kerala for this भगवान का रिट्रीट जैसे बोलते हैं ना, वहाँ पे सब लोग जाते, तो आई हैड ऑल्सो गॉन देयर, विच आई डिडंट इन्जॉय वन बिट। जबकि मुझे इंजरीज हुए थे, मैंने खाना भी इंजॉय नहीं किया, ना वो प्रेयर का चिरी चिरी इंजॉय किया, कुछ भी इंजॉय नहीं किया मैंने। खाना तो बिल्कुल भी नहीं, उनके फ्री फंड में ही रहता है। So I was thinking Malayali food which I've eaten outside is much better than what I've eaten in Kerala itself. Seriously, ये तो है एक fact. हद से ज़्यादा praise also going to make you a psycho. This man used to behave so proud ना, अभी कैसे उसकी मुंडी झुक के चल रहा है वो। You should be grateful. When I'm walking and talking, I say thank you Lord. All these sexual fetishes are going to make you very, very unhappy eventually. Trust me, they will. Let me see if I can do herbal tea session today. देखती हूँ मैं। I just love my haircut. आई टोल्ड यू ना, मेरी बिल्डिंग में लोगों के पास कितने सारे पैसे हैं, एंड दे आर शिफ्टिंग करके। ये सिर्फ ओनली दिस, यू हैव नो चॉइस एंड नथिंग टू डू, तो तुम लोग यहाँ पे हैंग अराउंड करोगे, वरना पीपल विल डेफिनेटली शिफ्ट। या तो ये रेंटल्स पे देंगे, या तो इफ़ दे डोंट वांट टू गिव अप दिस हाउस, रेंटल्स पे देंगे, या तो बेच के चले जाएंगे। इनफैक्ट मेरे सात माले पे 2 लोग हैं जो बेचना चाहते हैं। 2 फ्लैट्स, एक एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑन टॉप ऑफ मी,
इट्स बिकॉज वो कनाडा में सेटल हो चुके हैं, बहू बेटा, उनका एक ही बच्चा है, तो उनकी सिस्टर को भी लेके गए। मदर कनाडा से आ गई, गुज्जू बहन, उसके बाद उसके नाटक नखरे देखने चाहिए। मैंने बोला एक तो लुक एट हर, टिपिकल गुजरातन लेडी। हाँ, जैसे कनाडा पहुंच के वापस आ गई, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी है ये लेडी। शी टॉक्स वेरी लाउडली इन द कंपाउंड एंड अपने स्टोरीज सुनाती रहती है मेरे बाकी के नेबर। पहले भी वो बहुत बड़ी गॉसिप मॉन्गर ही थी, नीचे बैठी रहती थी। उसका बेटा और बहू यूज्ड टू स्टे ऑन ए विंग एंड ये रेंटल्स, अपनी बेटी के साथ रेंटल्स में बी विंग में रहती थी। उनका कोई, सो देर आर पीपल लाइक दिस। और एक बूढ़ा बूढ़ी है, उनको भी सेल करना है। उनके भी बहू बेटे पूरे खानदान है सेटल्ड इन कनाडा, और उसकी बेटी कहीं और पुणे में है। आई एम जस्ट सेइंग सच अ थिंग इज़ दैट यहाँ पे फ्लैट, बॉम्बे में फ्लैट बिकता है और वो 7th फ्लोर पे लिफ्ट नहीं है, बिकता है। सो ओल्ड पीपल के लिए बहुत तकलीफ़ होती है। भी बूढ़ा बूढ़ी दे सो ओवरवेट, उनको कितने हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो कितना प्रॉब्लम है। सो आई सी न्यू टावर्स, मैंने बोला ओल्ड बिल्डिंग्स में भी कितना स्पेस रहता है। मेरा तो फुल बिल्डिंग टॉप टू लेके बॉटम तक रेंटल्स ही है। इक्के दुक्के कहीं होंगे कि ओनर रहते हैं। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, ऊपर से लेके नीचे तक रेंटल्स, 70% रेंटल्स, 30% आर दिस। और काफ़ी सारे एज आई सेड लोग आज शिफ्टेड आसपास ही शिफ्ट किया है लोगों ने। हाँ, ये जो लेडी ग्राउंड फ्लोर पे आई है ना रेंटल्स पे, दिस लेडी का वो क्या बोलते हैं ना, रीडेवलपमेंट में जा रहा है फ्लैट 2017 में से। बंद पड़ गया था फिर से, तो शी इज़ एक्टिंग स्मार्ट एंड प्राउड बिकॉज नए बिल्डिंग में शिफ्ट होना है इवेंचुअली। जबकि उसका एक फ्लैट यहीं पे है, उसकी बेटी का समथिंग। शी डजंट वांट टू स्टे हियर। नहीं, बट पैसे खर्च कर मतलब वो भी रेंटल्स पे ही है। शी कैन शिफ्ट, नो बट इट इज़ फार अवे ना, सो इट इज़ डार्क एंड ऑल्सो आई डोंट वांट टू स्टे देयर। हाउ स्टूपिड इज़ दैट? हाउ स्टूपिड कुड यू गेट व्हेन यू ऑलरेडी हैव अ फ्लैट इन हैंड? या ऐसे एड़े लोग भी होते हैं, मेंटल जैसे। एक पैसे का घास नहीं डालती इस लेडी को मैं। There are people who waste money, लिटरली वेस्ट, मैं बोलती हूँ वेस्ट। अच्छा, इसी लेडी को ना कैट ने स्क्रैच किया था, आई डोंट नो, ये अपनी फ्रेंड के घर पे गई थी और समथिंग यहीं पे, दैट इज़ 2 years ago। कैट ने उसको स्क्रैच किया, बाइट किया, और ये अस्पताल में 1 हफ्ते के लिए थी, पागल। मैंने बोला वेरी गुड, आई सेड दिस लेडी डिजर्व्स इट। बराबर से पैर को स्क्रैच बाइट किया था। मैंने बोला ये हरामी औरत ऐसी थी। आई थिंक शी स्टेप्ड ऑन हर, कांट। देन आई टोल्ड हर, कुडंट यू सी द कैट? कुडंट यू सी सच अ बिग कैट? विल यू स्टेप ऑन इट? नेचुरली वो शी विल बाइट यू ना। फिर भी सुधरी नहीं है। कोई एक ऐसी चीज़ के लिए 7 दिन अस्पताल में थी। I think I'll make a move right now after some times. Why am I explaining all this in details? Is because the Bombay को इतना ऐसे करके रखा है ना। I am living in Bombay. I am living in a flat in a building. तो मैं तुम लोग को बोल रही हूँ कि ये जो सामने वो रॉयल, वहाँ खाली पड़े हैं फ्लैट्स, खाली, empty. Nobody is buying them also. Not that it is not a posh. It is a brand new construction. तो प्लीज़ डोंट गेट कैरिड अवे। तुम लोग अपनी रिसर्च करो रियल एस्टेट में, और एक ओवरव्यू देखो कि किस तरह के है यहाँ के। सारे जो लोग हमारे यहाँ से शिफ्ट हो गए ना, उनके सारे बच्चे अब्रॉड में ही हैं, एंड दे हैव ऑल शिफ्टेड टू न्यू बिल्डिंग्स। मे बी बिकॉज देयर चिल्ड्रन हैव बॉट इट, और ये प्रॉपर्टी समथिंग या तो रेंटल्स में दिया है, बट जनरली ऑल ऑफ देम हैव शिफ्टेड टू बेटर बिल्डिंग्स।
और इनके सारे के सारे बच्चे अब्रॉड में हैं. सो देयर इज़ अ मास इमिग्रेशन विच इज़ हैपनिंग. यहाँ बच्चे की 10th स्टैंडर्ड नहीं हुई, उनकी एडमिशन बाहर जाने की होती है. मेरे रिश्तेदारों में भी ऐसा ही है, उनके बच्चे अब्रॉड में हैं. सीरियसली, अगर 2 है तो उनमें से दोनों होते हैं या एक तो होता ही है. सो तो बॉम्बे में यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ क्राउड इज़ देयर राइट नाउ, बिकॉज द रियल बॉम्बे पीपल आर लिटरली. मैं माहिम की बात कर रही थी, व्हेन आई यूज्ड टू स्टे इन माहिम. ट्रस्ट मी, वो कैथलिक क्राउड जो है वो सारा यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, सब फॉरेन कंट्रीज़ में थे. सारे के सारे द क्राउड लिटरली. या दुबई, यू विल सी देम वर्किंग इन दुबई और सम गल्फ कंट्रीज़. तो यंग क्राउड ना के बराबर ही होता था वहाँ पर. बाय द 90s और अर्ली 2000 दे वर हार्डली एनी यंग क्राउड. आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो ये कैथलिक्स तो निकल गए. सो मारवाड़ीज़, गुजराती जिनके पास पैसे हैं वो आ गए. मुस्लिम्स पहले से ही थे, लेकिन द अदर क्राउड स्टार्टेड पोरिंग इन. तो माहिम वॉज बेसिकली दिस वेरी कैथलिक टाइप ऑफ अ क्राउड, क्रिश्चियन काइंड ऑफ अ क्राउड. अभी नहीं है. नाउ व्हेन आई गो टू माहिम आई कांट इवन, मैं पहचान भी नहीं पाती हूँ कि यही है. पूरा चेंज हो गया. जहाँ बंगलोज थे, जहाँ ओल्ड बिल्डिंग्स से बड़े बड़े टावर आ गए हैं. एंड ऐसे रद्दी जगह पे टावर बनाए हैं कि हम लोग सोच भी नहीं सकते. ऐसे रद्दी चौल को हटा के क्या क्या करके. ग्रीडी बिकॉज इट्स अ प्राइम लोकेशन. यू कैन नॉट. पहले इतना ब्यूटीफुल था. देयर आर लॉट ऑफ पारसीज, देयर आर लॉट ऑफ पारसी कॉलोनी, पारसी टेम्पल है. माहिम यूज्ड टू बी दिस क्वाइट लिटिल नाइस लिटिल टाउन साइड एरिया. अभी देखो कैसा है. रबिश ही बोल सकते हैं. इट इज़ बिकम सो, आई डोंट नो, दे आर ट्राइंग टू मेक इट इलीटिस्ट. आई डोंट नो, इट्स बिकम समथिंग डिफरेंट. सी फेसिंग वो खाड़ी है, ऐसा जब बैड स्मेल आता है वहाँ से. इवन द सी इज़ रियली हॉरिबल ओवर देयर, वो साइड में, बिकॉज नाले का पानी जाता है. आई डोंट नो व्हाट इट इज़ नॉट अ वेरी प्लेजेंट एक्सपीरियंस इफ दिल से सी फेसिंग एंड ऑल दैट. और सी फेसिंग में तुम्हारे सारे गैजेट्स ख़राब हो जाएंगे. पूरी चीज़ों में रस्ट आ जाएगा, जो हमारे साथ होता था. तो ब्लाइंडली डोंट बी सो दिस. पूरे एरिया को ख़राब करके रख दिया है. सो यहाँ पर भी ना, इट वॉज डिफरेंट. नो, लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग फ्रॉम स्मॉल टाउन्स एंड दे आर टेकिंग ओवर बॉम्बे. जो कि रियल बॉम्बे के लोग जो रहते थे वो दे आर ऑल अब्रॉड, आर दे वर्किंग अब्रॉड. मैं अपनी ही बिल्डिंग की बात कर रही हूँ. या तो बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं और वहीं सेटल हो जाते हैं, और हार्डली देयर इज क्राउड. सब रेंटल्स है, मतलब दे हैव कम फ्रॉम स्मॉल टाउन. तो दिस इज़ द रियलिटी ऑफ बॉम्बे. स्मॉल टाउन के लोग आके बस चुके हैं यहाँ पर. तो माहौल कैसा रहेगा. और वो आते हैं जाते हैं. सो देयर इज़ नो, वो बिल्डिंग का ऑरा भी चेंज हो गया है. पहले ना बहुत सारे बच्चे नीचे खेलते थे, लेडीज यूज्ड टू सिट डाउन, देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरेक्शन, देयर वाज अ डिफरेंट वाइब ऑल टुगेदर. या तो चौल के लोग या बिल्डिंग, चौल के लोगों को खरीदना भी है तो 1-1 करोड़ का बिल्डिंग है, फ्लैट है. सो ये है, ये दिस इज़ अ सिचुएशन. एंड आजकल ये क्रिश्चियंस के पास भी काफ़ी सारा पैसा आ चुका है. सो दे आर ऑल्सो एक्टिंग वेरी इलिटिस्ट. यू शुड सी द चर्च इतना अच्छी तरह से. पहले बहुत ही सिंपल प्लेस था, बहुत ही सिंपल, लेकिन आजकल इतना पैसा आ गया है. यू विल सी पीपल कमिंग टू द चर्च इन द लेटेस्ट कार्स, लेटेस्ट. और सबकी गर्दन ऐसे, बिकॉज हाई अच्छी खासी डेजिग्नेशन, अच्छी खासी नौकरी होती है. और ये सीनियर सिटीजन के बच्चे पूरे अब्रॉड में हैं, तो इनको अलग घमंड रहता है. Now you got it? What I'm saying. मैं अपनी ही बिल्डिंग की बात कर रही हूँ. जब रेंटल्स आते हैं पूरा माहौल उथल पुथल हो जाता है. वो ऑथेंटिसिटी नहीं रहती है वो सोसाइटी या बिल्डिंग की. काफ़ी नए लोग भी आ गए हैं. मुझे तो ये भी पता नहीं कौन कहाँ पर है. मतलब पहले भी मैं ज़्यादा बातें नहीं करती थी, लेकिन आजकल मैं इतने चेंजेस देख रही हूँ कि
मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं अपने ही बिल्डिंग में जा रही हूँ करके, इतने चेंजेस होते काम हैं। करेंगे और मैं देखो अभी कहाँ गया वो पप्पी? आई एम मिसिंग दैट पप्पी, आई होप ही कम्स इन। चलो आई जस्ट वाइंड अप, ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड बाय।